کا ایشو بھی جو ہے نا، اگر ہم مظاہرہ جو ہے وہ کام اور روایت دونوں کے باہر آدھا گھنٹہ تو کر دیا، آدھا گھنٹہ ادھر آدھا گھنٹہ دونوں کے پاس کام مظاہرہ ہے، لیکن اس کے لیے مظاہرے کے لیے ضروری ہے کہ موبلائزیشن ٹھیک ہونی چاہیے. مظاہرہ جو ہے وہ روایتی نہیں ہونا چاہیے، اس کے بھرپور شرکت ہونی چاہیے اور فورسفل، تاکہ ایک اسٹرانگ میسج جو ہے وہ جائے کہ اب ہم جو ہے نا وہ صرف سیریمونیل وہ نہیں کر رہے، بلکہ اب ہم مظاہرے سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ میرا خیال ہے منڈے کو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے RMUJ کے دوستوں کو اور ڈان اور روایت کے سامنے مظاہرہ کہ تاریخ دونوں کا ڈفرینٹ ہمارے کرنے کا کیب کر کے ہم مظاہرہ کریں. دوسری بات جو ابرار صاحب نے کی کہ PFUJ اس پورے عرصے میں کیا کر رہی ہے، میں ایک چیز آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ PFUJ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ایکشنز کے ذریعے جو ہے جمہوری مکالمے کے ذریعے اور جمہوریت میں جو راستے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے وہی کر سکتی ہے. کوئی ہتھیار بند آرگنائزیشن نہیں ہے PFUJ. اگر آپ PFUJ کے پورے اس ٹینیور کو دیکھیں اور اس سے پہلے کا ٹینیور بھی اگر آپ دیکھیں پچھلے 5-6 سال میں PFUJ خاصی فعال ہوئی ہے اور اس فعالیت کی وجہ سے وہ ریکگنائز ہوتی ہے. ابھی میں جب آیا ہوں مظاہرے میں، وہاں جرنلسٹ ڈیفینس کونسل کا کمیٹی جو ہے اس کا ایک اجلاس تھا اور اس میں پورے پاکستان سے بتائی جرنلسٹ کے ساتھ کیسے ہم نے جو ہے مزید فعال رول جو ہے وہ ادا کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا، میں وہاں پہ تھا اور ایک بہترین اگر ہمیں جو سپورٹ ملی ہے وہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے ملی ہے. سارے لائرز پورے پاکستان میں متحرک ہیں. آپ کے جتنے بھی کیسز ہیں، وکٹمز جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، چاہے مرڈر کیسز ہیں چاہے ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، ان کیسز کو پرسو کرنے کے لیے انہوں نے لاہ عمل بنایا ہے اور اس کے لیے جو ہے PFUJ ڈاکومنٹیشن کر کے ویریفائی کر کے کیسز جو ہے ان تک پہنچاتی ہے. اور ہمارے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں آصف بشیر چودھری اور ناصر ملک، ان کے ساتھ ایکٹیولی انوالو اس پروسیس کے اندر کہ اب کوئی کیس جو ہے نا جرنلسٹ کی ہراسمنٹ کا، مرڈر کا، وہ سارا فالو ہوتا ہے اور جرنلسٹ ڈیفینس کمیٹی جو ہے نا ان کیسز کو پرسو کرتی ہے. اسی طرح آپ کو میں ایک IFJ کے ساتھ جو ایک پروسیس چل رہا ہے اس میں انہوں نے ہمیں کچھ تھوڑے سے انڈیکیشنز دیے ہیں، لیکن ان انڈیکیشنز میں جب انہوں نے ایک ویبینار کیا اور اس میں رانا عظیم اور اس کو انوالو کیا، تو ہم نے اب وہ ایک اور ویبینار کرنا چاہتے تھے. اس میں ہمیں بھی انوائٹ کر رہے تھے اور ان کو بھی انوائٹ کر رہے تھے. ہم نے انہیں کہا کہ دیکھیے یہ آرگنائزیشن PFUJ جو ہے اگر ٹائمی آرگنائزیشنس کو، ڈرائنگ روم کی آرگنائزیشنس کو آپ ایٹ پار بٹھا دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ویری گڈ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہتر کوآرڈینیشن جو ہے وہ کریں اور ریکگنائز کریں کہ ہم PFUJ ہیں. پورے پاکستان کے اندر ہماری تنظیم ہے، ہمارے ریگولر الیکشنز ہوتے ہیں اور ہم پورا 2 سال جو ہے افیکٹولی
फोर्सफुली जो है ना हर मसले पे, चाहे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मसला हो, चाहे वर्कर्स के राइट का मसला हो, हमेशा हम फोर फ्रंट पे होते हैं। तो आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करें और हम आपके साथ कोऑपरेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि उनके साथ आपने रहना है या हमारे साथ। वेरी गुड। तो आज ही हमने उन्हें लेटर लिखा है कि हम उस वेबिनार में जो है वो शरीक नहीं होंगे, जिस वेबिनार में जो है ड्राइंग रूम के सहाफ़ी जो है लोगों को जो है वो आप इंक्लूड करेंगे। इसी तरह और बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि सोशल मीडिया रूल्स के हवाले से, कोर्ट के केसेस के हवाले से हम हर फ्रंट पे, कोई ऐसा फ्रंट नहीं है जहाँ पे हम ना स्टैंड लेते हों, हम ना फ्रंट पे हों। तो जाहिर है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ट्रेड यूनियन का रोल भी है, उसका फ्रीडम ऑफ प्रेस मेन कंसर्न है। इन दोनों इशू पे हमारी जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये क्लैरिटी मेरा ख्याल है कि पिछले 5 साल से PFUJ जो है वो हमारी ही PFUJ है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर भी स्टैंड लेती है और वर्कर्स के राइट के ऊपर भी स्टैंड लेती है। हम गए हैं पार्लियामेंट के सामने, 2 दफ़ा पार्लियामेंट के सामने गए हैं और भरपूर अपने नुमाइंदगी की है और भरपूर एहतजाज किया है। इसी तरह जब भी कारकुनों की बरतरफियों का मसला होता है, कौन होता है अदारों के सामने एहतजाज करता है? पूरे पाकिस्तान में एहतजाज जो है वो हम ही करते हैं। अगर सहाफ़ियों पे हमले के मसले हों तो वो सहाफ़ी जो हमारे साथ ताउन नहीं करते, हमारे खिलाफ होते हैं इलेक्शन के अंदर, लेकिन जब प्रिंसिपल का मसला होता है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के जो है वो चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र होनी चाहिए। और मैं RIUJ को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हमेशा आइडियलाइज़ करता हूँ कि RIUJ जो है वो PFUJ का वेन गार्ड है, और RIUJ ने हमेशा जो है वो फोर फ्रंट पे PFUJ की लड़ाई लड़ी है। कोई ऐसा मौका नहीं है कि जहाँ इन्होंने मफाहमत का रोल अदा किया हो, रेजिस्टेंस ना की हो, डर गए हो, पीछे हट गए हो, हमेशा आगे होते हैं। तो RIUJ जो है वो पूरे पाकिस्तान की यूजेस का वेन गार्ड है, और तमाम यूजेस जो हैं वो RIUJ की तरफ देखती हैं। और मैं समझता हूँ कि मंडे का जो हमारा एहतजाज होगा डान और न्यूज़ के सामने, डान और नवाए वक्त के सामने, ये जब मैं कहता हूँ कि माइलस्टोन होगा, तो इसके साथ ही हम ईद के फ़ौरन बाद जो है वो बड़े अदारों के सामने जो है वो एहतजाज, जंग के सामने भी एहतजाज होगा, डान के सामने भी एहतजाज होगा, और हर जगह होगा, हर जगह करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मद्देनज़र रखनी चाहिए, और होप का दामन जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम होप में हैं, हमारी कमिटमेंट है, हमारी रेजिलियंस है, हम रेजिस्ट कर सकते हैं, और हमारे अंदर जज्बा है कि हम आँखों में आँखें डाल के आमिरों का भी मुकाबला कर सकते हैं, हुकूमत का भी मुकाबला कर सकते हैं, मालकान का भी मुकाबला कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि इस PFUJ और इससे एफिलिएटेड यूजेस में ही जज्बा है कि वो हुकूमत को भी चैलेंज कर सकती हैं, स्टेट को भी चैलेंज कर सकती हैं, और मालकान को भी चैलेंज, और ये मालकान भी समझते हैं, स्टेट भी समझती है, और हुकूमत भी समझती है कि यही PFUJ है जो रेजिस्ट कर सकती है, टफ टाइम दे सकती है। ये उनको भी रियलाइजेशन है। आपकी पिछले 5-6 साल की जो कंटिन्यूस स्ट्रगल है, अफजल भट्ट साहब का पीरियड आपके सामने है, उसके बाद
फिर अफजल भट्ट साहब का पीरियड था, फिर हम और हमारी लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन भी है कि हमारा यहाँ एक ही लीडर नहीं है। अफजल भट्ट लीडर थे तो अफजल भट्ट साहब ने थ्रू इलेक्शन, थ्रू प्रोसेस जो है लीडरशिप को ट्रांसफ़र की सारी पावर। नए दोस्त आए, नए दोस्तों की लीडरशिप की है। तो ये हमारे यहाँ ई प्रोसेस है कि जो अफजल भट्ट साहब ने ट्रेडिशन थी, उसी ट्रेडिशन की बुनियाद पे आज PFUJ में हम हैं, कल PFUJ में आसिफ बशीर होंगे, आमिर सज्जाद होंगे। तो ये कंटिन्यूटी जो है लीडरशिप, एक जगह चौधराहट के हमारे मसाइल नहीं है, कंटिन्यूटी जो है ये हमारी ताकत है। और हमें इस ताकत को जो है ना वो अपने आइडियल के साथ जो है ना कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, होप का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और आखिरी बात ये है कि जो एहतजाज दवाए वक्त और डाम के सामने हो, उस पर फिर मोबिलाइजेशन आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज हो, सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त कैंपेन हो, ताकि मालकान, क्योंकि ये लड़ाई अब मालकान की तरफ, अब हमने टारगेट मालकान को किया है, तो मालकान को पता चलना चाहिए कि हम जो है वो भरपूर तैयारियों के साथ